Hello, student. Good morning, everyone. पिछले कल के क्लास में हमने ऑक्सीजन फैमिली के बारे में शुरू किया था। पी ब्लॉक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चैप्टर तुम लोगों का चल रहा है। तो शुरू में जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स थे, नाइट्रोजन फैमिली पे हमने बात की। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट किया था, जिसमें कि ऑक्सीजन, ओजोन, इन सब के बारे में डिस्कस किया। आज ऑक्सीजन फैमिली के ही दूसरे मेंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताया था तो मालूम हुआ था कि सेकंड मेंबर कौन सा है, सल्फर। तो सल्फर, केमिस्ट्री ऑफ सल्फर और उसके कंपाउंड, इस पे आज के चैप्टर में तुम लोगों से बात करनी है। उम्मीद है इससे पहले जो कुछ बताया है वो सबको समझ में आया होगा। अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ो, आसानी से तैयार भी हो जाएगा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम आज सल्फर और उसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सल्फर मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका बताया था, S8 होता है। और इस एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं इसके कई, जिनके बारे में पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। तो सल्फर और उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। Sulfur exists in several allotropic forms. The important ones are rhombic or octahedral और alpha sulfur. कुछ क्लियर कम दिख रहा है, तो जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान देना, पढ़ करके सुना देना है। rhombic और octahedral या alpha sulfur. This is the common form of sulfur. It is prepared by slowly evaporating the solution of sulfur in sulfur dioxide in a dish when octahedral crystal of rhombic sulfur appear. It is pale yellow in color. Its specific gravity is 2.06 gram per cube and melts at 385.5 Kelvin. It is insoluble in water but dissolved in some extent in benzene, alcohol and ether also. It is readily soluble in carbon disulfide. It is a crystalline variety and consists of S8 structural units paired together into octahedral form. तो सल्फर मॉलिक्यूल इस तरह से 8 एटम इसमें इस तरह से जुड़े होते हैं और उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इनका बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री और ये जो बाउंड लेंथ है वो है 204 पिकोमीटर। This is the stable variety at ordinary temperature, and all other forms of sulfur gradually change into this form on standing. This form get converted into monoclinic form when heated above 369 Kelvin. Now, second allotropic form, monoclinic or prismatic or beta sulfur. This form is formed by melting sulfur in a dish and cooling till crust is formed. Two holes are made in the crust and liquid is poured out.
On removing the crust, needle-shaped crystals of monoclinic sulfur are obtained. It is dull yellow in color. It has a specific gravity of 1.98 gram per cube and melts at 393 Kelvin. It is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. It is stable above 369 Kelvin. Below this temperature, it slowly changes into rhombic form. तो रोम्बिक सल्फर को 369 तक हम गर्म करेंगे तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाता है और इसे बिलो रखने पे ये रोम्बिक सल्फर में रहता है. Thus 369 Kelvin is the transition temperature. Monoclinic sulfur also consists of S8 molecules. The two forms, however, differ in packing of the molecule in the crystal lattice. In monoclinic sulfur, S8 rings are packed on the top of each other, while in rhombic sulfur, S8 rings fit comfortably into each other. ये दोनों डायग्राम यहाँ पे ये है. रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, सल्फर एटम इस तरह से होते हैं इसमें. मोनोक्लिनिक सल्फर में इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है. Several other allotropic forms of sulfur containing 6 to 20 sulfur atoms per ring have been synthesized in the last 2 decades. One such form is cyclo S6 ring, which exists as a chair. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखने में चेयर जैसा लगता है. A number of chain polymers called catina SN are known, in which N varies from 2 to 5. At temperature 1000 Kelvin, S2 is the dominant species. It is paramagnetic like oxygen and blue color. This is the general characteristics of sulfur. अब है सल्फर डाइऑक्साइड. ये क्या है? सल्फर का सबसे सिंपल कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड गैस. इसको हम इसकी केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में जानते हैं. प्रेपरेशन किस तरह से करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का? मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है SO2. The following reactions can be used for the preparation of sulfur dioxide. First, by burning sulfur in air or oxygen. तो S plus O2, SO2 बनता है. By heating sulfur with concentrated sulfuric acid. कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हीट किया सल्फर के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है. By heating copper or silver with concentrated sulfuric acid. Copper plus sulfuric acid कंसनट्रेटेड लेंगे यहाँ पे तो कॉपर सल्फेट वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवोपरेट होगी. इसी तरह सिल्वर का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होगा तो सिल्वर सल्फेट प्लस H2O plus SO2. By reacting sodium sulfite or sodium hydrosulfide with dilute HCl. Sodium sulfite, this is, and this is sodium hydrosulfide. Both react with HCl to form SO2. Whole reaction is that NaCl plus H2 plus SO2. Now by roasting of sulfides, zinc sulfide या आयरन पायराइड्स, फेरस सल्फाइड, इसको हम ऑक्सीजन के साथ दोनों को हीट करेंगे. करने पे हमें जिंक ऑक्साइड और ये फेरिक ऑक्साइड मिलता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है. द रिएक्शन BCD कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO2 इन द लेबोरेटरी व्हाइल द रिएक्शन AE आर यूज्ड इन इंडस्ट्री. तो कौन कौन सा? बी अभी देखा जो ये वाला रिएक्शन सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद कॉपर सल्फेट
कॉपर और सिल्वर का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से, और डी सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड। लेबोरेटरी प्रोसेस में इसका यूज करते हैं ए और ई। पहला प्रोसेस क्या था? बाय बर्निंग सल्फर इन एयर, एंड लास्ट है बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड। ये जब हम मेटलर्जी प्रोसेस में हमने बताया था। तो इसका यूज कहाँ होता है? इंडस्ट्री या कमर्शियल स्केल में प्रोडक्शन, जब सल्फर डाइऑक्साइड का करना होता है। तो जब हम रोस्टिंग कर रहे थे तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती थी उसको हम अलग कलेक्ट करते हैं, जहाँ इसका काम होता है उसमें यूज करते हैं। In place where gypsum of anhydride is found in abundance, sulfur dioxide can be obtained on a large scale by heating gypsum or anhydride with carbon at about 1273 Kelvin. तो gypsum कॉपर सल्फेट कार्बन से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बनने के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है, जिसे हमें सेपरेट करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज कलरलेस गैस विद ए पंजेंट suffocating odor. It is heavier than air. It is highly soluble in water. It can be easily liquefied to a colorless liquid at 263 Kelvin and into a stew-like solid at 197 Kelvin. Now chemical properties. Sulfur dioxide neither burns nor helps in burning. However, burning magnesium and potassium continue to burn in its atmosphere. मैग्नीशियम सल्फर डाइऑक्साइड से या पोटेशियम सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके 2MgO बनाता है ये, और MgS, और इसी तरह से यहाँ पे K2SO3 पोटेशियम सल्फाइड और पोटेशियम टेट्रा सल्फाइड थायोसल्फाइड। उसके बाद है थर्मल डिकम्पोजिशन। It decomposes at 1200 degrees centigrade, producing sulfur trioxide and sulfur. 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने पे ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर में कन्वर्ट होती है। अब है एसिडिक नेचर। इट इज इन एन एसिडिक ऑक्साइड। इट डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब ये डिजॉल्व होकर वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है या सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, यहाँ पे ये सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, तो इसका नेचर एसिडिक ही होगा। The gas is therefore known as sulfurous anhydride. It combines with basic oxide and forms sulfides. बेरियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके बेरियम सल्फाइड बनाती है। It combines with alkalis NaOH SO2 से रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड। इसी तरह अब सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन करके के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होता है तो सोडियम बाइसल्फाइड बनता है। Now it decomposes carbonates and bicarbonates. कार्बोनेट से रिएक्शन करके उसको बाइकार्बोनेट में डिकम्पोज कर देती है। Now addition reaction. It combines directly with halogen to form sulfuryl halide. SO2 halogen से यानी क्लोरीन से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। It combines directly with oxygen in presence of catalyst, that is platinized asbestos होता है कैटलिस्ट। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाती है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। नाउ इट कंबाइंस डायरेक्टली विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वही रिएक्शन है ये। It directly combines with lead oxide to form lead sulfate. lead oxide के साथ combined होके ये lead sulfate बनाती है ये
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है। लेड ऑक्साइड का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से। नाउ रिड्यूसिंग नेचर, the aqueous solution of sulfur dioxide act as a reducing agent as sulfurous acid change into sulfuric acid, giving nascent hydrogen. एक्वस सॉल्यूशन पहले सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन देता है, जो कि नेसेंट हाइड्रोजन है। और ये नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन करके दूसरे सब्सटेंस का ये रिडक्शन करती है। Example, it reduces halogens to their respective hydra acids. सल्फर डाइऑक्साइड जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और HCl इसका रिडक्शन हो जाता है, HCl बनता है। एसिडिफाइड KMnO4 is reduced, that is it is decolorized. KMnO4 से जब रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसको डिकम्पोज कर देता है, जो इसका कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है और यहाँ पे भी हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है। ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से है कि KMnO4 का रिएक्शन H2SO4 से हो रहा है, तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और नेसेंट ऑक्सीजन। SO2 का रिएक्शन वाटर से होता है तो नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है। फिर ये दोनों रिएक्शन करके आपस में H2O बनाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट SO2 और H2O तो बनता है पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और H2SO4। तो पोटेशियम का परमैंगनेट का जो पिंक कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। Now acidified potassium dichromate is turned green due to formation of chromic sulfate. इस तरह का रिएक्शन होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके बनाता है क्रोमिक सल्फेट, H2 और नेसेंट ऑक्सीजन। अभी सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नेसेंट हाइड्रोजन देती है। फिर ये नेसेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड और H2SO4, इसे कहते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन SO2 से, तब ये क्रोमिक सल्फेट का ग्रीन कलर हमें मिलता है। नाउ फेरिक सल्फेट इज रिड्यूस्ड टू फेरस सल्फेट। फेरिक सल्फेट है ये सल्फर डाइऑक्साइड और H2O से रिएक्शन होता है, तो ये फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा रिएक्शन ये है, सल्फर डाइऑक्साइड का H2O से रिएक्शन तो नेसेंट हाइड्रोजन, फिर ये नेसेंट हाइड्रोजन फेरिक सल्फेट को फेरक सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद है इट रिड्यूसेस एसिडिफाइड आयोडेट्स टू आयोडीन। पोटेशियम आयोडेट सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन होता है, यानी जो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये पूरा रिएक्शन पोटेशियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और आयोडीन में रिड्यूस हो जाता है पोटेशियम आयोडेट। ओवरऑल रिएक्शन ये है, जैसे जिस तरह से वाटर और SO2 का रिएक्शन, फिर KiO2 से सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जो यहाँ बन रहा है, और फिर नेसेंट हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हुई उससे HiO3 से रिएक्शन होता है और आयोडीन लिबरेट होती है। Now oxidizing nature, sulfur dioxide also act as an oxidizing agent, particularly when treated with stronger reducing agent. Examples is oxidize H2S into S। H2S का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से होता है तो सल्फर रिड्यूस हो जाती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड। Mg मैग्नीशियम सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके MgO में ऑक्सीडाइज हो जाती है। पोटेशियम सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके पोटेशियम सल्फाइड और ये प्रोडक्ट बनाती है। आयरन सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 बाय SO2। Carbon monoxide reacts with sulfur dioxide to form
carbon dioxide and sulfur. At 1000 degrees centigrade, it oxidizes hydrogen into water, SO2 plus 2H2. 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दोनों रिएक्शन थर्ड और फोर्थ इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है ही। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीच में से खोज लिए जाते हैं क्वेश्चन के लिए, वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। Now, stannous and mercurous salts are oxidized in presence of excess of HCl. Stannous chlorides, when reacts with sulfur dioxide in presence of HCl, it forms stannic chloride plus H2O plus S, and mercurous chloride reacts with SO2 and HCl to form mercury chloride and sulfur. Now, bleaching action of, देखो ये दोनों रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग एक्शन, sulfur dioxide is in presence of moisture act as a bleaching agent. Bleaching agent means कलर उड़ा देना किसी कलर वाले कंपाउंड सब्सटेंस का। This is due to the reducing nature of sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन देती है। यही नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है कलर उड़ाने के लिए। कलर मैटर प्लस H तो कलरलेस मैटर हो जाता है। द ब्लीचिंग इज टेम्परेरी। द ब्लीच्ड मैटर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर regain its color due to oxidation. Now, use of sulfur dioxide. Sulfur dioxide is used in manufacture of sulfuric acid and paper from wood pulp. It is used as a bleaching agent for delicate articles like wool, silk, and rubber. It is used in refining of petroleum and sugar, as a disinfectant or for killing disease, germs, fungi, and certain amounts. It is used as a refrigerant in form of liquid SO2. It is used as an anti color for removing chlorine from a fabric after bleaching. Now, स्ट्रक्चर हम पहले ही बता चुके हैं सल्फर के बारे में। Oxo acids of sulfur. Sulfur forms a number of oxo acids such as sulfurous acid H2, S2O3, H2, S2O4, इस तरह के कंपाउंड बनाती है ये। H2SO5 and H2S2O8. Some of these acids are unstable and cannot be isolated in free state. They are known in aqueous solution or in the form of their salts. Oxy acids having SS linkage are called thionic acid. Structure of the important oxo acid has been already given in the table. तो यहाँ पे ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है ये दी हुई है, जो भी तुम्हारा एसिड फार्मूला है और उसका स्ट्रक्चर है। सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होती है, बेसिसिटी 2 होगी, 2 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है, OH कोऑर्डिनेट, और इसके पास यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इस तरह से होगा। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का यहाँ पे 6 है, बेसिसिटी 2 है, और स्ट्रक्चर 2 तरह से होती है, पहले भी पढ़ चुके हैं उसको। उसके बाद है थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और बेसिसिटी 2 ही होगी क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर इसका ये दिया हुआ है सामने, इस तरह से होता है। उसके बाद है डाइथायोनिक एसिड, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ सल्फर की 5 है, स्ट्रक्चर ये तुम्हारे सामने है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडेशन नंबर इस पे सल्फर का 6,
H2 है तो बेसिसिटी 2 और स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होगा ये पूरा, या इस तरह से। उसके बाद है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO5, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का यहाँ 6 होगा। बेसिसिटी सब में 2 ही है और स्ट्रक्चर इसका ये सामने दिया हुआ है। उसके बाद है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, ऑक्सीडेशन नंबर 6 सल्फर का, बेसिसिटी 2 और स्ट्रक्चर ये पूरा या इस तरह से। उसके बाद जो दूसरे कंपाउंड होते हैं सल्फ ऑक्सीजन फैमिली के या 16 ग्रुप के, उनके भी यहाँ पे ऑक्साइड दिए हुए हैं, ऑक्सा एसिड्स के फार्मूले इस तरह से ये सामने दिए हुए हैं। तो यहाँ चूंकि हम सल्फर पे ही डिस्कस कर रहे हैं तो सल्फर के बारे में ही हमने बात की। तो ये सारे स्ट्रक्चर थे ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर के। उसके अलावा सल्फर डाई ऑक्साइड के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा। अगले क्लास में हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।